सो हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस कंट्रोल सिस्टम पाठशाला के गेट 2016 इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन में। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क और 2 मार्क के सभी एमसीक्यू। सो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है ये। सो व्हाट इज़ द डेटा? सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड व्हाट इज़ द डेटा? इफ x of s, the Laplace transform of a signal x of t is given by this, then the value of x of t as t tends to infinite. So सबसे पहले तो हमें जो x of t दिया है that is a signal, it is not a system. ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? x of s is given, so we need to find steady state value of x of t. Right, so we have multiple method. First method, that is the inverse Laplace method, but as this will take more time, so we can approach final value theorem, है ना? अगर हम final value theorem apply करेंगे, so we can directly get x infinite. So what is the concept? That is L s, limit s tends to 0 into x of s. So this is s, limit s tends to 0. Again I am saying this is a signal, it's not a system. So this is s plus 2 divided by s plus 1 into s plus 3 whole square. Now you can take this s in denominator. So this is limit s tends to 0. This is s plus 2 upon, this is what? 1 upon 1 by s, and this is s plus 3 whole square. Now you can apply s tends to 0 because it is now not in indeterminate form. So this will be 0, this will be 0, and what is the value of this 1 by 0? It is infinite. So what is infinite plus 1? That is infinite. So value is 2 divided by infinite into, this is 9. So what is something 2 by 9 by infinite? That is 0. So we have x infinite equals to 0. So this is the value at t tends to infinite. So the right answer is 0. Clear? So इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. Now let's see the second question. So this is the second MCQ और हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. नंबर ऑफ टाइम्स द Nyquist प्लॉट ऑफ g of s, okay, will encircle the origin clockwise. मतलब कि हमें clockwise डिरेक्शन में पूछा है नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट. ठीक है, सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है? g of s का एनसर्कलमेंट, मतलब वी हैव g of s that is s minus 1 upon s plus 1. अब we can find the Nyquist plot by taking s equals to j omega, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज j omega minus 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस 1. और अगर इसका हम मैग्नीट्यूड एंड एंगल फाइंड करेंगे, सो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा? 1. क्यों? बिकॉज दिस इज नथिंग एल्स बट ऑल पास फिल्टर. और इस तरह के ऑल पास फिल्टर के एग्जांपल्स हमने गेट 2020 और गेट 2018 बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं. फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ऑल पास फिल्टर. सेम वे वी कैन फाइंड सेकेंड ऑर्डर ऑल पास फिल्टर ऑल्सो. मतलब के फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी belongs to 0 to infinite, the magnitude is 1. And what about the phase angle? So theta, that is tan inverse b by a, that is omega by minus 1 minus tan inverse omega, right? So हमें इसका phase angle क्या मिलेगा? What is this tan inverse omega by minus 1? That is minus of tan inverse omega. बिकॉज ये हमें कौन सा क्वाड्रेंट देगा? y पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड x नेगेटिव, दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट.
और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इनवर्स नेगेटिव होता है. सो दिस इज लाइक दिस माइनस tan इनवर्स ओमेगा. सो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, -2 tan इनवर्स ओमेगा. ठीक है. सो दिस इज द थीटा. सो ये हमें मिला मैग्नीट्यूड, ये हमें मिला थीटा. सो अब हम ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के ऊपर फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 0, ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट, हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा एंड हमें थीटा मिलेगा. अब ये मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा फॉर ऑल दी फ्रीक्वेंसी रेंजेस, बट व्हाट अबाउट ओमेगा इज इक्वल टू 0, थीटा इज tan इनवर्स 0 इज 0, सो 0. फिर ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट. व्हाट इज tan इनवर्स इनफाइनाइट, व्हाट इज tan इनवर्स इनफाइनाइट, कितना होता है 90. सो दिस इज -180, राइट. सो दिस इज kind of -0. So if we plot the Nyquist plot, let's say first we plot polar plot. So polar plot हमें कैसा मिलेगा, at omega equals to 0 we have magnitude 1 and angle 0. So let's say I am saying this is 0 degree, this is -90 degree, this is -180 degree. If we are going in clockwise direction like this direction, right, -180, this is -270, and this is equivalent to -360 or -0. ठीक है. So omega is equal to 0 पे we are getting +1 magnitude and angle is 0. So let's say from here we have this magnitude 1 at 0 degree. Now where it is moving, it is moving in this direction, so it is going somewhere like this. अब ये कहाँ जा रहा है, at omega is equal to infinite, this point it is omega equals to 0, right. At omega is equal to infinite, angle is -180, but magnitude 1 है, मतलब कि ये जो है वो 1 का रेडियस लेके r equals to 1 ये एक सर्कल बना रहा है इस तरह से. So we are getting this kind of thing. ठीक है. This magnitude, this much, that is also 1 because radius is 1, है ना. So this is the direction, this is the direction. इस तरह से ये जा रहा है. ठीक है. अगर हमें इसका नाइक्विस्ट बनाना है पूरा, सो अगर हम -इनफाइनाइट टू 0 ले ओमेगा, सो हमें इसकी मिरर इमेज मिलेगी एज पर द नाइक्विस्ट थ्योरम. सो हमें इस तरह से इसका मिरर इमेज मिलेगा. सो वी विल बी गेटिंग दिस क्लोज कंटूर. अब एज वी नो दिस मैग्नीट्यूड इज 1, मीन्स आई कैन से दिस इज -1 एंड दिस इज +1, राइट. सो अब आप मुझे बताओ कि इफ दिस इज अ यूनिट सर्कल, इफ दिस इज अ यूनिट सर्कल, देन व्हाट इज, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम्स Nyquist plot of g of s will encircle origin. So this is the origin, this is the origin, this is the origin. So you tell me ये कितनी बार encircle हो रहा है. So your encirclement, that is 1 time. In which direction? It encircles in clockwise direction. Now you know clockwise represent positive या negative. Clockwise को हम कैसे represent करते हैं, origin clockwise, clockwise is -1, राइट. तो अगर आप देखो एनसर्कलमेंट जो आपको n मिलेगा दैट इज -1, बट यहाँ पे हमें ये पूछा क्या गया है, विल एनसर्कल ओरिजिन क्लॉकवाइज. सो ये क्लॉकवाइज ही है, कितनी बार घूमेगा, एक बार. सो अगर आपको इसके ऊपर से फिर आगे कैलकुलेशन करना है स्टेबिलिटी, दैट इज NP ओपन लूप माइनस नंबर ऑफ पोल क्लोज लूप, और इसके ऊपर से इफ यू नीड टू स्टेबिलिटी एनालिसिस करना है तो आपको क्या चाहिए, तो आप जो एनसर्कलमेंट है इसे आप -1 लोगे, पर ऑलरेडी बोला गया है माइनस इंडिकेट्स नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट क्लॉकवाइज, ये ऑलरेडी दिया गया है, मतलब कि ये ऑलरेडी माइनस साइन दिया गया है आपको, तो ये कितनी बार घूमेगा, एक बार. क्लियर. सो द राइट आंसर इज 1. ठीक है, ये अच्छा एक MCQ था. लेट्स सी द नेक्स्ट MCQ.
Okay, this is third number question. So what is the problem statement? The value of a0 which will ensure that this polynomial has roots on left half of the S plane. ठीक है, मतलब कि अगर इसके सारे रूट्स अगर लेफ्ट हाफ में है मतलब कि सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल. सो इसमें इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है हमें, विच एंश्योर वैल्यू ऑफ a0 की वैल्यू फाइंड करो फॉर ये जो डेल्टा एस है, हम इसे कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले रहे हैं s³ प्लस 3s² प्लस 2s प्लस a0 है ना. ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो रूट्स मिले हमें वो नेगेटिव रियल मिले, उसका रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव में हो, मतलब के लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, मतलब के एब्सोल्युटली स्टेबल. ठीक है. सो हमें इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि आप a0 ऐसा फाइंड करो सच दैट आपका जो ये सिस्टम है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है ये स्टेबल हो. सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली यूज द राउथ-हर्विट्ज एरे, है ना. राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं और इसके ऊपर से हमें कोएफिशिएंट मिलेंगे s³ s² s और 1. आप इंटरनल प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट आपको पता है इट इज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, है ना. कैसे, लेट्स से s³ s² s1. सो व्हाट इज s³, कोएफिशिएंट इज 1, this is 2, this is 2 sorry, s² में this is 3 and what is this is a0. तो आपको ये क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट सी 3 into 2 मतलब कि इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर एंड एस टर्म, मतलब कि इंटरनल मल्टीप्लीकेशन. सो दिस इज 6 माइनस दिस a0 into 1. so this is a0 डिवाइड बाय दिस, ये 0 रहेगा क्योंकि ये आगे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कोई टर्म है नहीं मतलब कि 0 है. ठीक है. और यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस. ना ये तो 0 है डिवाइड बाय दिस, तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a0. अब आपको पता है फॉर स्टेबिलिटी हमें ये जो है कॉलम 1 राउथ-हर्विट्ज एरे की वो सभी कंपोनेंट सेम साइन से चाहिए. तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसे भी तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसे भी तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. सो अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, a0 शुड बी ग्रेटर देन 0. नाउ चेक द ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस a0 इज पॉजिटिव. ओके, ये फुलफिल हो रही है. एंड सेकंड कंडीशन 6 माइनस a0 बाई 3 दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब के 6 minus a0 should greater than 0, मतलब के your a0 should be less than 6. Now you check the option, 6 से कम होना चाहिए, ये नहीं है, बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है. Only D equals to 5. This is less than 6. Clear? So अगर a0 हम if we choose a0 equals to 5 then this condition is satisfied, means the system is absolutely stable, means all the roots are in left half of S plane. Clear? Now let's see the next question. So we have next question is this, that is fourth. Am I right? Question number 4. Yes. The input I of t equals to this, okay, is applied to a system whose transfer function is this. So this is a system, मतलब कि हमें ऐसा दिया गया है, ये जो एक सिस्टम है मैग्नीट्यूड एंगल थीटा के फॉर्म में ये सिस्टम है, ये सिस्टम को हम करंट इनपुट दे रहे हैं, मतलब कि हम कोई फ्रीक्वेंसी इनपुट दे रहे हैं दैट इज़ आई टी, और उसका क्या है, साइनोसोडल इनपुट है 2 साइन 3t प्लस पाई. ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी अगर मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट करूँ a साइन ओमेगा टी प्लस 5, सो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा जो है वो है 3
और फाई जो है दैट इज पाई। ठीक है, ये इनपुट का डेटा है। और क्या दिया गया है, तो ये पूछा गया है, और ये जो सिस्टम है ये इस फॉर्म में है 8/s+10 होल स्क्वायर। ओके, सो मुझे इसको मैग्नीट्यूड और एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। सो करने के लिए आई नीड टू टेक s इक्वल्स टू j ओमेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 8/j ओमेगा प्लस 10 होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ओमेगा, इज 3, ओमेगा इज 3, है ना, क्योंकि इनपुट फ्रीक्वेंसी देके रखी है दैट इज 3। सो दिस इज 8 डिवाइड बाय 3j प्लस 10 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर से मुझे मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा भाई, दैट इज 8/3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 100। सो ये मुझे मिला 8/109। एम आई राइट और रॉन्ग, लेट मी चेक। ओके, दिस इज गुड। और यहाँ से मुझे जो एंगल मिलेगा, सिस्टम का एंगल, लेट्स से आई एम डिनोटिंग इट विथ थीटा बार, तो ये एंगल क्या मिलेगा, -2 tan इनवर्स b बाय a। व्हाट इज b, 3/10, राइट, ये एंगल मिला। अब मुझे क्या पूछा गया है कि अगर इस तरह से मैं सिस्टम में आई ऑफ टी अप्लाई करता हूँ, ये सिस्टम का ये मैग्नीट्यूड है, ये थीटा बार है, मतलब कि अगर मैं उसे थीटा बार बोलूँ, थीटा बार। सो अब मुझे क्या फाइंड करना है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिस्टम। मतलब कि अगर मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है वाई ऑफ टी, तो वाई ऑफ टी क्या मिलेगा, लेट्स से बी साइन ओमेगा टी प्लस 5 बार, ये फेज शिफ्ट है ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मुझे बी कितना मिलेगा, बी उतना मिलेगा जितना सिस्टम का मैग्नीट्यूड है एट इनपुट फ्रीक्वेंसी इनटू इनपुट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए, ये ए है ना। सो अब मैं मैग्नीट्यूड बोलूँ एट ओमेगा, ये कितना मिल रहा है मुझे, दैट इज 8/109 इनटू मेरा इनपुट का मैग्नीट्यूड क्या है, a इक्वल्स टू 2। फ्रॉम दिस आई कैन ऑल्सो फाइंड a इक्वल्स टू 2, सो दिस इज 2। सो अब मुझे जो b मिलेगा दैट इज 16/109। सो दिस इज माई आंसर, b इक्वल्स टू 16/109, and if you find it, your b that is 0.1467. ठीक है, so this is your b that is 0.1467. clear? so इस तरह से आप साइनूसोइडल एनालिसिस या तो फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले एग्जाम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट MCQ, दैट इज MCQ नंबर 5। ओके, सो क्या बोला गया है, द रिलेशन बिटवीन द फोर्स F of t एंड द डिस्प्लेसमेंट X of t ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, स्प्रिंग मास है और इसमें d बोला है, मतलब कि डैम्पर खा गए ये लोग, देयर इज इन बिल्ट अ डैम्पर। So mass spring damper system with a mass m, viscous damping d and spring constant k। अब डायरेक्टली आपको इसका मॉडल भी दिया है, ये दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडल जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया गया है। और क्या बोला गया है, x of s and f of s are the Laplace transform of x of t and f of t। So अब क्या करना है, with m equals to this, d equals to this, k equals to this in appropriate unit, the transfer function find करना है। ओके, सो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ यू टेक द लाप्लास व्हाट इज द सॉल्यूशन। सो इस तरह से है, देयर इज नो इनिशियल कंडीशन, रिमेंबर देयर इज नो इनिशियल कंडीशन, मतलब कि जो इनिशियल कंडीशंस है वो 0 है,
and because of that we are not using the differential equation formula. उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या आप भी कोई भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड या कोई भी मेथड यूज करते हैं वो नहीं यूज करते हैं. डायरेक्टली वी आर यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेस्ड ट्रांसफर फंक्शन मेथड. सो ये क्या मिलेगा आपको, एम एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस. अगर इफ आई टेक लाप्लास ऑफ दिस मैथमेटिकल मॉडल तो मुझे एम एस स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ एस प्लस ये क्या मिलेगा, डी एस एक्स ऑफ एस प्लस के इंटू एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू दिस इज एफ ऑफ एस. सो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज जी ऑफ एस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनपुट फोर्स. सो ये आपको क्या मिलेगा, एक्स ऑफ एस बाय एफ ऑफ एस. सो यहाँ पे आपको एफ ऑफ एस दैट इज 1 अपॉन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एम एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस के. क्लियर. नाउ आपको पता है सबका मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज एम, एम इज 0.1, सो दिस इज 0.1 एस स्क्वायर. व्हाट इज डी, दैट इज 2, दैट इज 2s प्लस व्हाट इज के, दिस इज 10. नाउ यू चेक द ऑप्शंस. ये तो हो नहीं सकता, ठीक है. फिर ये ऊपर एस स्क्वायर वाला भी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली यू कैन से दिस इज द ऑप्शन. अब यहाँ से दिस इज 1/10, सो आप 10 को ऊपर ले जाओ. सो अब नीचे क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100. सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन. सो दिस इज आवर राइट आंसर. क्लियर. सो देखो आप डेटा रीड करके ही बोल सकते हो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही फॉर्म में ही होगा. अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन भी है, इफ यू हैव दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो, देन यू कैन से कि भाई राइट आंसर इज ए. ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट. ओके, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड एंगल प्लॉट दिया है और आपको फाइंड करना है अप्रोप्रिएट ट्रांसफर फंक्शन. सो कैसे करेंगे, सो लेट्स से वी नीड टू फाइंड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज. दिस आर द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, 2 corner frequencies, this and this. Okay, so first corner frequency 1, that is 10⁻⁴ is 1, and corner frequency 2 that is 10⁻², that is 100. क्योंकि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे स्लोप चेंज हो रहा है. इनिशियली दिस इज 0 dB per decade, है ना, और उसके बाद में वी आर गेटिंग दिस. सो आप अगर देखो ये 10⁻⁴ मतलब 1 है और ये 10⁻² मतलब कि 2 डिकेड है और ये मैग्नीट्यूड कितना जा रहा है 80. सो ये स्लोप है प्लस 40 dB पर डिकेड, क्योंकि ये 2 डिकेड शिफ्ट हो रहा है 80 मैग्नीट्यूड पे. तो एक डिकेड कितने मैग्नीट्यूड पे शिफ्ट होगा 40, तो इसका स्लोप होगा 40 dB पर डिकेड. और अगेन यहाँ पे हो रहा है दिस इज 0 dB पर डिकेड, स्ट्रेट लाइन है ना, दिस स्लोप. सो हमें स्लोप की इंफॉर्मेशन मिल गई. सो इसके ऊपर से टेंटेटिव स्ट्रक्चर मिल सकता है हमें, है ना. सो दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 6 आई थिंक, यस. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6 और इसके ऊपर से हमें जो टेंटेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा हमारे सिस्टम का, दैट इज जी ऑफ एस एच ऑफ एस, वो मिलेगा मैग्नीट्यूड के अपॉन. अब आप देखो इनिशियली 0 था और उसके बाद में 0, अभी इनिशियल स्लोप 0 dB पर डिकेड था, मतलब कि सिस्टम में कोई पोलेट ओरिजिन या जीरो एट ओरिजिन नहीं है. और उसके बाद में वी आर गेटिंग प्लस 40 dB पर डिकेड, मतलब कि सिस्टम में डोमिनेटिंग फर्स्ट 0 है, मतलब, और ये डबल 0 है, प्लस 40 है ना. मतलब कि आपको मिलेगा 1 प्लस एस बाय ओमेगा सी 1 होल स्क्वायर, बराबर, क्योंकि ये 2 0 होंगे तो ही प्लस 40 dB पर डिकेड होगा. अब देखो उसके बाद में यू आर गेटिंग 0 dB पर डिकेड, मतलब कि यहाँ कहीं पे कंपेंसेटिंग पोल्स होंगे ओमेगा सी 2 के ऊपर, और कितने होंगे डबल, ताकि ये प्लस 40 dB पर डिकेड में माइनस 40 dB पर डिकेड ऐड हो जाए, ताकि हमारा जो टोटल वो हो 0 dB पर डिकेड. अब आप सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के ऊपर से अगर मैं के फाइंड नहीं करता हूँ
तो मुझे क्या मिलता है, व्हाट इज ओमेगा C1 इज 1, सो दिस इज k इंटू एस प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज ओमेगा C2, ओमेगा C2 इज 100, सो दिस इज s प्लस 100 होल स्क्वायर, और यहाँ से जो 100 होगा उसका स्क्वायर ऊपर जाएगा, है ना, सो इट इज इंटू 10⁻⁴। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सेट हो रहा है, ये माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, ये माइनस वाला भी हो नहीं सकता। नाउ वी हैव टू ऑप्शन, s प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ s प्लस 1 है, ठीक है, सो ये भी नहीं हो सकता, सो वी हैव दिस राइट आंसर, दैट इज 10⁻⁴ s प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन s प्लस 100 स्क्वायर। अभी समझो कि आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है जिसमें ये जो कांस्टेंट पार्ट है उसमें कुछ वेरिएशन है, तो आपको ये k फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ये k फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे, यू नो इट, आपको यहाँ पे मिलेगा दिस स्ट्रेट लाइन, है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन पे आपको मिलेगा, सो दैट इज 20 log k, दैट इज इक्वल्स टू 0 dB। सो क्या मिलेगा आपको, दिस इज log k इक्वल्स टू 0, सो इन फैक्ट दिस इज k इक्वल्स टू 10⁻�0। सो आपको k जो है वो मिलेगा 1, है ना। सो आप यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 रख दोगे, तो आपको जो ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s h ऑफ s वो इस तरह से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी फीडबैक नहीं बोला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे g ऑफ s इंटू h ऑफ s लिखा है, क्लियर। सो दैट इज 10⁻⁴ s प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन s प्लस 100 होल स्क्वायर, क्लियर। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। सो अभी क्या बोला गया है, फॉर द फीडबैक सिस्टम गिवन बिलो the transfer function g of s, this is the g of s, that is g of s 1 upon s plus 1 whole square, right। अब क्या पूछा गया है, the system cannot be stabilized with, so आपके पास ये जो है that is a compensator, right, and this is a plant या सिस्टम। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा कंपेंसेटर है जो ये g ऑफ s को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। दिस इज द यूनिटी फीडबैक, h ऑफ s इक्वल्स टू 1, राइट। सो सबसे पहले अगर हमारे पास इस तरह से सिस्टम है, लेट्स से दिस इज r ऑफ s एंड दिस इज द कंट्रोल्ड आउटपुट, तो आपको इसके ऊपर से हम आगे कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले यू कैन फाइंड द डेल्टा s, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो वो मिलेगा 1 प्लस c ऑफ s इंटू जी ऑफ s इंटू h ऑफ s इक्वल्स टू 0 करके, राइट। सो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या मिलेगा, दैट इज 1 प्लस व्हाट इज g ऑफ s, लेट्स से c ऑफ s। अब c ऑफ s देखो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है, अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो c ऑफ s है वो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर है, तो मुझे ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या मिलेगा, दैट इज kp प्लस ये इंटीग्रल एक्शन है तो वो मुझे मिलेगा ki/s। तो अब मैं एज्यूम करता हूँ, क्योंकि ये देखो चारों ऑप्शन में प्रोपोर्शनल तो है, सॉरी इंटीग्रल तो है ही 1/s, प्रोपोर्शनल यूज करना है कि नहीं वो आगे चेक करेंगे। सो हम देखते हैं c ऑफ s का हम ये फॉर्मेट लेते हैं, दिस इज pi कंट्रोलर या तो कंपेंसेटर, ठीक है। सो अब kp अगर c ऑफ s हम pi कंट्रोलर लेंगे तो ये क्या होगा, kp प्लस ki/s into what is g of s, that is 1 upon s plus 1 whole square, so that is s square plus 2s plus 1, right, equals to 0। so अब मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या मिलेगा, 1 प्लस kps प्लस ki बाय kps प्लस ki बाय ये s अंदर ले जाओ तो मुझे मिलेगा s क्यूब
प्लस 2a स्क्वायर प्लस s, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसे मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे मिलेगा s क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस s कॉमन, राइट, दिस इज kp प्लस 1 प्लस ki इक्वल्स टू 0। तो आप ये समझ गए। अभी आप देखो, ये जो मुझे मिला वो मुझे मिला कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किसका, पूरे क्लोज लूप सिस्टम का। क्या इसके ऊपर से मैं Kp और Ki की रेंज फाइंड नहीं कर सकता और मैं चेक नहीं कर सकता? ये देखो, ये Kp है, ये Kp है, ये Kp है, ये Kp है और ये Ki है। अब कौन सी रेंज में ये सेट नहीं होगा ये मुझे नहीं पता चलेगा। यस, आई कैन फाइंड। सो नाउ आई कैन यूज फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आई कैन यूज राउथ-हर्विट्ज। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ राउथ-हर्विट्ज एरे, यूजिंग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। सो अपना राउथ-हर्विट्ज एरे क्या बनेगा, एस क्यूब एस स्क्वायर एस 1 और यहाँ पे एस क्यूब का कोएफिशिएंट दैट इज 1, फिर यहाँ पे है Kp प्लस 1, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पे है Ki, फिर एस यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज 2, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू Kp प्लस 1 लाइक दिस माइनस Ki बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा 0 और नीचे क्या मिलेगा आखिर में 1 का कोएफिशिएंट Ki। तो आप देखो कि अगर हमें सिस्टम को स्टेबल करना है तो ये जो कॉलम 1 है उसके सारे कंपोनेंट को हमें सेम साइन में रखना पड़ेगा ताकि इसमें साइन चेंज ना हो। सो आप देखो, इसमें पॉजिटिव साइन है, इसमें भी पॉजिटिव साइन है, सो यहाँ भी पॉजिटिव साइन रखनी पड़ेगी और यहाँ भी पॉजिटिव साइन, मतलब कि हमारा जो Ki होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप देखो, ये सब में ये Ki है, दिस इज 1, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये कंडीशन से हमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। नाउ वी विल चेक द अबव कंडीशन। तो अबव कंडीशन में क्या है, 2 Kp प्लस 1 माइनस Ki बाय 2 ग्रेटर देन 0 है। सो ये डिवाइड बाय 2 सामने चला जाएगा तो ये 0 हो गया। तो अब क्या मिला हमारे पास, 2 Kp प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन Ki, है ना। सो ये 2 को इधर ले जाओ तो अब क्या मिला, Kp प्लस 1 ग्रेटर देन Ki बाय 2, ये कंडीशन मिली। Kp प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन Ki बाय 2। सो अब आप चेक करो, यहाँ पे Kp है 1 और Ki है 3, यहाँ पे Kp है 3 और Ki है 9, यहाँ पे Kp 0 है और जो Ki है वो है 1 और यहाँ पे Kp is 3 and Ki is 7। Now we check, अब क्या बोला है, द सिस्टम कैन नॉट बी स्टेबिलाइज्ड विथ, मतलब कि इसमें कौन सा जो इक्वेशन है C ऑफ S का वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो लेट्स से पहले ये करते हैं, Kp पहले 3, ये 2 में है तो Kp 3 लेते हैं। सो अगर Kp हमारा जब भी 3 है, सो Ki by 2 when your Kp is 3, your Ki by 2 should be less than 4, मतलब कि your Ki should be less than 8। अब आप चेक करो किसमें Ki जो है वो लेस देन 8 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये 7 है, लेस देन है। बट इसमें अब देखो, when you are using Kp equals to 3, your Ki should be less than 8, बट यहाँ पे Ki है 9, मतलब कि this is not satisfying।
मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये आंसर नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि दिस इज द राइट ऑप्शन। मतलब जब हम इसे यूज करेंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। नाउ यू चेक दिस, नाउ यू टेक kp इक्वल्स टू 1, नाउ यू यूज दिस। नाउ व्हेन योर kp इक्वल्स टू 1, व्हाट शुड बी द कंडीशन? कंडीशन क्या होगी? ki बाय 2 लेस देन 2। सो अब देखो आपका जो ki होगा वो लेस देन 4 होना चाहिए, तो ki 3 है, तो ये भी पूरा कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये देखो kp आपका 0 है, ये 0 है, अगर kp 0 है तो आपका ki बाय 2 है वो लेस देन क्या होना चाहिए? 1, मतलब कि ki लेस देन 2, तो ये 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ C सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो योर राइट ऑप्शन इज C। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। अगर आपके ध्यान में कोई ऑल्टरनेटिव है तो भी आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट में रिप्लाई करके। और आई थिंक टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज दिस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें काफ़ी वेटेज था कंट्रोल सिस्टम का, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। सो क्या बोला है? मैच द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्सेस 1 2 3 विद द ट्रांसफर फंक्शंस P Q एंड R। ठीक है, सो ये सारे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है और ये उसके ट्रांसफर फंक्शन है। सो अब हम एक चीज कर सकते हैं, हम ये जो सिस्टम है, एक चीज है, एक तो है एनालिसिस, कि अगर आप ये सिस्टम का एनालिसिस करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, तो आपको इसके ऊपर से स्टेप रिस्पॉन्स का फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, है ना, और उसके ऊपर से आप ये ग्राफ से कवर कर सकते हो। या तो फिर दूसरा मेथड है, आप देखो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, व्हाट इज द t इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू 0, and what is the steady state value at t is equal to infinite, the value is -1। यहाँ पे what is the t is equal to 0, that is 0, okay, and what is t equals to infinite, that is -1, -1, okay। यहाँ पे what is t equals to 0, t equals to 0 is 0, the magnitude is 0, and what is t equals to infinite, that is +1। सो आप देखो ये दोनों में क्या हो रहा है, इनिशियल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू सेम है, बट द फाइनल वैल्यू वो भी सेम है, बट इसमें क्या है, t इज इक्वल टू 0 सेम है, बट द फाइनल वैल्यू इज डिफरेंट। तो आप देखो कि ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे -1 है, माइनस गेन है, मतलब कि इनिशियली ये कुछ क्या करेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। दिस इज व्हाट, माइनस ऑफ 1/s+1, दिस इज माइनस ऑफ 1/s+1। आप ये 1/s+1 का रिस्पॉन्स बनाओगे तो वो आपको कैसा मिलेगा, स्टेप रिस्पॉन्स, इट इज लाइक दिस। बट ये अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा रिस्पॉन्स कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको यहाँ से ऐसा मिल रहा है तो ये यहाँ से आपको उल्टा मिलेगा। सो यू सी दिस रिस्पॉन्स, पूरा उल्टा रिस्पॉन्स, मतलब कि योर 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर रिस्पॉन्स P। मतलब कि आपका जो 1 रिस्पॉन्स है इज कॉरस्पॉन्डिंग टू P। अब आप बताओगे सर ये कैसे पता चला, तो इट इज वेरी क्लियर, ये 1/s+1 है, ठीक है। आपका ये y ऑफ s क्या होगा, that is p of s into unit step, मतलब 1/s। what is your p of s, that is -1/s+1, ये into s होगा। so ये आपका माइनस बाहर रहा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो तो ये क्या होगा, s+1 माइनस s/s होगा। तो ये क्या मिला, माइनस तो बाहर ही है, दिस इज 1/s माइनस दिस इज 1/s+1। तो ये रिस्पॉन्स क्या मिला, माइनस, व्हाट इज दिस, 1 माइनस e⁻t मिला कि नहीं। सो दिस इज योर y ऑफ t।
मतलब कि आपका जो रिस्पॉन्स था यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स उसका माइनस करना है आपको। तो इसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा था, इट वॉज लाइक दिस, उसका माइनस करोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। क्लियर? सो ये आप तो पता चल गया 1p। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो s-1 है, इसमें भी दिस इज नॉन मिनिमम फेज सिस्टम या मिनिमम फेज सिस्टम, बिकॉज यू हैव 0 विच इज राइट हैंड साइड। तो आप मुझे बताओ ये मिनिमम फेज सिस्टम है कि नॉन मिनिमम फेज सिस्टम? ठीक है, सो फॉर दिस अगर ये करे उससे पहले हम ये करते हैं। चलो इसके लिए क्या आप इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड कर सकते हो? देखो आपके पास एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, अब ये दो ऑप्शन ही बचे। ये दो ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? इनिशियल वैल्यू सेम है, डिफरेंस क्या है फाइनल वैल्यू में। तो अगर आप इसका फाइनल वैल्यू थ्योरम से फाइनल वैल्यू फाइंड करोगे तो इसका आपको y ऑफ s क्या मिलेगा? दैट इज 1/s इंटू 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? y स्टेडी स्टेट क्या होगा? दैट इज s लिमिट s टेंड्स टू 0 1/s s प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस s कैंसल आउट। Now you take s टेंड्स टू 0 तो ये आपको 1 मिला। तो आपको पता चल गया कि ये सिस्टम का एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1। अब आप चेक करो कौन से रिस्पॉन्स में मैग्नीट्यूड 1 है पॉजिटिव, ये रिस्पॉन्स में है ना। मतलब कि योर दिस 3 नंबर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू r ऑफ s। नाउ यू चेक ये दोनों में से कौन सा 3 नंबर जो है इज कॉरस्पॉन्डिंग टू r ऑफ s, दिस। So automatically your D is the right option. Okay, अब हम अगर हमें क्रॉस चेक करना है Q का तो इसका भी स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालो, वो -1 ही मिलेगा। तो इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा? अगर ये Q ऑफ S है तो उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू होगा YSS दैट इज 1/s इंटू 2s-1 अपॉन दिस इज s प्लस 10 इंटू s प्लस 2 इंटू s एट s टेंस टू 0। ये लिमिट की जगह मैंने यहाँ s टेंस टू 0 रख दिया और s से मल्टीप्लाई किया। सो दिस s कैंसल आउट एंड व्हाट इज दिस एट s टेंस टू 0? दिस इज -2 हियर, दिस इज 10 इंटू 2। सो दिस इज 2 कैंसल आउट, सो दिस इज -1/10 that is -0.1. So I think here there should be some problem. You check it out आंसर की। ठीक है, या तो फिर ये जो है ना वो s प्लस 10 नहीं होगा, दिस विल ओनली s प्लस 1 फॉर श्योर। सो आप अगर यहाँ पे s प्लस 1 करोगे सो ये -1 मिलेगा आपको आंसर, ये -1 मिलेगा। या तो फिर यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा इंटू 10⁻⁻1 होगा। ठीक है, सो देर इज सम मिसमैच। ये आप चेक द आंसर की, आई एम डैम श्योर आंसर की चेक करो IIT की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, शायद इसमें कुछ गलती है, समथिंग इज मिसिंग। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। गेट के MCQ बड़ी बात नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो तो आप कोई भी MCQ सॉल्व कर सकते हो।